फगवाड़ा के ओंकार नगर के दशहरे के रावण कुंभकर्ण के धड़ फ्लोर दरिया में तैरते नजर आए। आप भी देखो। एनडीटीवी पंजाब न्यूज़ के लिए फगवाड़ा से यश शर्मा की रिपोर्ट। मनीष जी बता सकते हो ये आपने क्या बनाया हुआ है? रावण और कुंभकर्ण बनाया था। ओमकार नगर के लिए ऑर्डर था 2 मूर्तियों का जी। वो आधा धड़ ले गए थे, आधा धड़ बोल रहे थे, तो अभी मुड़ के आते हैं। वो मुड़ के आ नहीं पाए। मुड़ के आए नहीं? नहीं। फिर आपको पता लगा क्यों नहीं आए? पता नहीं भाई, ये हमको नहीं पता। नो, हम इतना हम पे समय भी नहीं था। दशहरे के बिब्बल था, हम पे काम बहुत था, इसलिए हम दोबारा फोन भी किया था हमने एक दफे, तो आप किसी ने फोन चका नहीं था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिश ठेकेदार। कहाँ से? आगरा के है। आगरा के रहने वाले। तो आप लोग यहाँ पे ये खास इसी काम के हाँ लिए जी, आते हो? रावण बनाने के लिए आते हैं 1.5 महीने के लिए। अच्छा, तो इसकी जो रावण के बाकी अंग जो है वो कहाँ पड़े हैं? ओमकार नगर में। और उसके वहाँ तो सिर्फ खाली धड़ गया हुआ है। तो पैर और मुंडी वहाँ पर है शमशान घाट में। शमशान घाट में? हाँ जी, हदियाबाग पुराना शहर शमशान घाट। तो ये वहाँ के लिए था? हाँ जी, ओमकार नगर के लिए था। धड़ ले गए थे, सिर और पैर रह गए थे। वो हमसे बोले थे मुड़ के आएंगे, वो आ नहीं पाए। पता नहीं क्यों नहीं आए। ठीक है, धन्यवाद। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 295 ਏ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਛਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਨਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਹਰ ਈਅਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ करते रहता वा। उनके पुतले के बनाते हैं, आगरा के आते हैं, और ये ओमकार नगर के हैं। 2 मूर्तियां थी, और उधर की ओमकार नगर की ये रावण है, वो कुंभकर्ण है। 2 बॉडियां तो ले गए थे, पर मुंह नहीं लेके गए। फिर मैंने पूछा भी, फ़ोन भी किया था, तो वो मुड़ के आ नहीं पाए। पता नहीं क्यों नहीं आ पाए भाई। ਪਿਛਲੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਾ ਜਲਾਏ ਦੇਣ ਦਾ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧੜ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਧੜ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਪੁਤਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਬਾਈਟਸ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਮੂਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਦਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ 2 ਡਰੋਨ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਸਾਰਜਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਐਸਪੀ ਫਗਵਾੜਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਕਸ਼ ਤੋਂ ਫੇਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪੁਤਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਐਸਐਚਓ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤਲੇ ਲਿਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਧੜ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਿਰ ਪਏ ਨੇ 10 ਸਿਰ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਵਿਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ? ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਨੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲਲ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਓਮਕਾਰ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਕ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ उस दिन रावण और कुंभकर्ण के जो पुतले थे वो जलाए नहीं गए, सिर्फ मेघनाथ का पुतला जला। और ये चिंगारी नित्य प्रति हर दिन सुलगती जा रही है। अब आज प्रशासनिक अमले ने अधूरे पुतलों को उठा करके उस ग्राउंड से जहां पर उनका संस्कार होना था, उन्हें ले जा करके जहां तक जानकारी मिली है कि फिलौर की दरिया में जल प्रवाह करवाया गया। क्या हमारा सनातन धर्म या हमारी हिंदू संस्कृति गृहस्थी के लिए और एक महाबली प्रकांड रावण और महाबली कुंभकर्ण जैसे इन महाबलियों का क्या ऐसा संस्कार किया जा सकता है? जल समाधि या जल में छोड़ा जा सकता है? क्या कहना है आपका? भारतीय संस्कृति के मुताबिक हम लोगों का जो संबंध है वो विशेष रूप से कर्मकांड और ज्योतिष के विषय में है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक ये दशहरे के दौरान ही मेघनाथ और कुंभकर्ण इत्यादि के रावण के पुतलों को बना करके उन्हें प्रतिष्ठित करके जला दिया जाता है। और हमारी संस्कृति में जलाना यानी कि उनको दाह संस्कार करना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा हमारा जो त्यौहार है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। पहली बात, अगर ये दुर्घटना हुई है तो बहुत ही शर्मनाक है
और हम इसकी भर्त्सना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, इससे हमारी संस्कृति को बड़ा नुकसान होता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उन पुतलों को हमने विस्थापित किया था तो विधिवत जिस प्रकार से अनादि काल से लेकर के हम इसका संस्कार करते हैं वैसे होना चाहिए था। अगर इनका ऐसे किया गया तो बहुत ही गलत बात है। तो इनका कुछ ना कुछ इनके विषय में तो हम यही कहते हैं कि इन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ करके सारे कृत्य की अच्छा नहीं है। जिस तरह की जहां तक पुतलों की बात कही गई कि पुतले थे, लेकिन पुतले अधूरे हैं। अधूरे पुतलों को जल प्रवाहित किया गया, सिर और उनके पांव, टांगे वगैरह वो अभी तक फगवाड़ा के अंदर ही पड़ी हुई हैं। सिर्फ धड़ जो है उसको प्रवाहित कर दिया गया। क्या ये शहर के लिए या देश के लिए अच्छा रहेगा क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम किसी भी ऐसे शरीर को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए भी विशेष रूप से अंग और हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए था कि कुछ अंगों को लेकर के ये कर दिया और उसमें कोई किसी हमारी जो संस्था है उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया। ये भी बहुत गलत बात है। अगर हमारी संस्कृति के मुताबिक हमारे त्योहारों में ऐसा होने लग पड़ा तो आने वाले समय में हम कैसी कल्पना कर सकते हैं? क्या तो इसके बारे में बहुत विचारणीय विषय है। क्या आपको लगता नहीं सनातन और हिंदू धर्म के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है? ये बिल्कुल सत्य है। जिन लोगों की आस्था हमारे धर्म से जुड़ी हुई है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही दुख का विषय है, और इसका जो प्रभाव आने वाले समय में है वो हमारी संतति के ऊपर, हमारे सारे मौसम विभाग, सारी चीज़ों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं, श्रेष्ठ नहीं है। दूसरा, आज पंचकों का समय चल रहा है। चौथी पंचक आज थी, कल पांचवी पंचक अंतिम चरण की पंचक थी। तो चौथी पंचक में हो सकता है संभवतः जो पंचकीय विधान है उसके अनुसार संस्कार ना हुआ हो, तो उसका क्या असर होगा फिर? सबसे पहली बात तो ये है कि रावण का जो संस्कार है वो जो इन्होंने किया वो ठीक नहीं किया। एक 10वीं में ही होना चाहिए था। हम कहीं उसके बाद एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी में इनका संस्कार या कुछ भी इनके शरीर का कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहीं विधान नहीं है। विजयादशमी वाले दिन ही रावण का जो कुछ भी किया जाता है वो होता है। क्या नया दशहरा मानना चाहिए क्या? नहीं, नया दशहरा तो आप लोगों ने किया है, लेकिन हमारी संस्कृति तो इसको बिल्कुल इसको अवॉइड करती है, और जिन्होंने किया उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है। आपके मुताबिक कि हमारे जो धर्म ज्ञाता हैं उनसे बिना विचार विमर्श किए जो है सारा काम किया गया, ये कहना है आपका? बिल्कुल, ये अनाड़ी के किसी के अनाड़ी व्यक्ति का ये सारा कार्य है। अन्यथा जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वो ना तो किसी के धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाते हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसा वो कर, क्योंकि एक हिंदू एक ऐसा पवित्र धर्म है कि जिसमें कभी किसी का विरोध नहीं होता है, लेकिन अपने धर्मों को ठीक तरीके से निभाने के लिए अगर वो कोई आवाज़ उठाता तो उसकी आवाज़ बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है, उसको उठानी चाहिए।